فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ آج جو بھی ہندوستانی فاسٹ بالر ہیں ان کے پیچھے بہت سی جدوجہد چھپی ہوئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ محمد سراج کی سالگرہ پر BCCI نے ایک خاص ویڈیو شیئر کی جس میں بالر اپنی جدوجہد کے دنوں کو یاد کر رہے۔ ویڈیو میں سراج کو اپنے آبائی شہر میں سیر کرتے ہوئے اور ان جگہوں کا دورہ کرتے ہوئے دیکھا جا رہا جہاں وہ اپنی جدوجہد کے دنوں میں جاتے تھے۔ اس ویڈیو میں سراج نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بالنگ کتنی تیز ہے۔ اپنی جدوجہد کی کہانی بتاتے ہوئے محمد سراج نے کہا انہوں نے ٹینس بال سے کھیل کر اپنی بالنگ کی رفتار میں اضافہ کیا۔ اس ویڈیو پر مداحوں کی جانب سے کافی رد عمل سامنے آ رہا۔ محمد سراج نے اپنی گفتگو میں یہ انکشاف بھی کیا کہ جب وہ جدوجہد کر رہے تھے تو وہ کیٹرنگ کا کام بھی کرتے تھے۔ محمد سراج نے کہا کہ وہ رومالی روٹی بھی بناتے تھے۔ رومالی روٹی بناتے وقت ان کے ہاتھ کئی بار جل گئے۔ اس ویڈیو میں سراج اپنے پرانے دوستوں سے بھی ملتے نظر آ رہے۔ ان کے دوست سراج سے مل کر بہت خوش ہیں۔ 1994 میں 13 مارچ کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے سراج کے والد آٹو چلاتے تھے۔ ان کی والدہ گھریلو خاتون تھی اور ڈیبیو ٹیسٹ سے قبل ہی سراج کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ویڈیو میں سراج اپنے والد کے بارے میں بات کرتے ہوئے کافی جذباتی بھی دکھائی دے رہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ گلی کوچوں میں ٹینس بال کھیل کر ٹیم انڈیا کے لیے کھیلنا بڑی بات ہے۔ سراج نے یہ کمال کر دکھایا۔ سراج ون ڈے میں دنیا کے نمبر 1 بالر بھی بن گئے۔ سراج نے سال 2017 میں بین الاقوامی کرکٹ میں ڈیبیو کیا۔ سراج نے اب تک ہندوستان کے لیے 27 ٹیسٹ، 41 ون ڈے اور 2010 میں انٹرنیشنل میچ کھیلے ہیں۔ مجموعی طور پر اب تک سراج بین الاقوامی کرکٹ میں 154 وکٹیں لے چکے ہیں۔ RCB کے لیے IPL میں سیریز کھیلتے ہیں۔ مرکزی حکومت تلنگانہ کے گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر کی تبدیلی کی اجازت دے دی۔ مرکز نے TSA TG تلنگانہ گاڑیوں کے رجسٹریشن پلیٹس کو منظوری دے دی ہے۔ اس سلسلے میں وزارت روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز نے ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ معلوم ہوا ہے کہ تلنگانہ کے کابینہ کے اجلاس میں رجسٹریشن کوڈ کو TG میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس اتوار کو منعقد ہوا تھا۔ اس سلسلے میں حکام نے مرکزی محکمہ ٹرانسپورٹ کو مکتوب روانہ کیا تھا۔ مرکز نے اس پر اپنی منظوری کی مہر لگا دی۔ اب سے گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر TG سے شروع ہوگی۔ اس کے ساتھ اب سے گاڑیوں کے نمبر پلیٹس پر TS کے بجائے TG تحریر کیا جائے گا۔ ریاست بھر میں روزانہ 10,000 نئی گاڑیوں کا رجسٹریشن ہوتا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی پارٹی لوک سبھا انتخابات میں بہار کے 40 پارلیمانی حلقوں میں سے 11 نشستوں پر الیکشن لڑے گی۔ بہار کے پارٹی صدر اختر الایمان نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جن نشستوں پر مجلس مقابلہ کرے گی وہاں مسلمانوں کی کثیر آبادی ہے۔ اختر الایمان نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پارٹی دربھنگہ، بھاگلپور، کراکت، بکسر، گیا، مظفر پور، اجیار پور کے علاوہ سیمانچل کی 4 نشستوں پر پورنیا، کٹیہار، اوریا اور کشن گنج سے بھی اپنے امیدوار میدان میں اتارے گی۔ واضح ہے کہ MIM نے پہلے ہی اختر الایمان کو کشن گنج سے اپنا امیدوار قرار دے چکی ہے۔ اختر الایمان نے کہا کہ MIM بہت جلد دیگر نشستوں کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کرے گی۔ اختر الایمان نے ان خبروں کی بھی تردید کی کہ ان کی پارٹی مجلس سے صرف مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری انتخابی سیاست صرف مسلمانوں تک محدود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت پسماندگی، غربت، ناخواندگی جیسے بنیادی مسائل کو اٹھاتی رہی ہے اور ہم اس وقت تک ان مسائل کو اٹھاتے رہیں گے جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ کوئی الیکشن لڑنے کا بڑا دباؤ تھا، ان کا نام پیش کیا گیا ہے اور بکسر سے
काराकट से, गया से, मुजफ्फरपुर से, उजियारपुर से, दरभंगा से और भागलपुर से हम लोग इन लगभग 10-11 स्थानों पर हम लोग इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो लोग वहाँ के प्रत्याशी थे उन लोगों को हम लोगों ने हैदराबाद से राब्ता करने के लिए कहा है और वहाँ के जो मुकामी संगठन है उन लोगों से हम लोगों ने राय लेना भी शुरू कर दिया है। प्रत्याशी की घोषणा कब तक कर देंगे? उन लोगों को मैंने कह दिया है वहाँ हैदराबाद से राब्ता करने के लिए, तो ये लोग हैदराबाद गए होंगे, फिर हैदराबाद से हम लोग की बात हो जाती है तो 2-4 दिन के अंदर घोषणा पत्र भी जारी किए हैं। घोषणा तो हम लोगों का वही घोषणा। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद हलके का वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने दौरा किया। उन्होंने सरकारी गर्ल्स हॉस्टल का मुआयना किया। हॉस्टल के लिए कंपाउंड वॉल की तामीर के साथ साथ पीने के पानी की सहूलत और स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल के हल के लिए उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। सरकारी डिग्री कॉलेज की इमारत की तकमील के बावजूद भी तालिबात को इसमें मुंतकिल न किए जाने पर ओहदेदारों से सवाल किया। तेलंगाना के जिले वरंगल के जमीकुंटा की तहसीलदार रजनी के मकान पर एसीबी ने छापा मारा। आमदनी से ज्यादा असासजात रखने के इल्जाम में ये कार्रवाई की गई है। हनमकुंडा के KLS रेड्डी कॉलोनी में रजनी के रिश्तेदारों के मकानात की भी एक साथ तलाशी ली गई। सुबह एसीबी की टीमों ने ये तलाशी ली। जराये के मुताबिक इस तलाशी के दौरान अहम दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात ने इंतबाह देते हुए कहा है कि आइंदा दिनों के दौरान दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान है। जारिया साल फरवरी के अवाखिर से ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ अवाम का मानना है कि मार्च में इस तरह की सूरत हाल है तो फिर अप्रैल और मई में किस तरह की सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ेगा। जारिया माह मामूल से 4 डिग्री ज्यादा दर्जे हरारत दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि दर्जे हरारत 40 डिग्री दर्ज किए जाने का इम्कान है। KTR ने कहा है कि वो होने वाली करीमनगर मीटिंग में शिरकत के काबिल नहीं। वो गुज़िश्ता 2 दिनों से डॉक्टर की ज़रे निगरानी घर में ही ज़रे इलाज हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मुकम्मल सेहतयाबी के लिए 1 या 2 दिन का वक्त लगेगा। BRS की कारगुजार सदर KTR जिन्होंने गुज़िश्ता कुछ दिनों से पार्टी के जलसों में शिरकत की है, गुज़िश्ता 2 दिनों से शदीद बुखार और फ्लू की अलामत में मुब्तला हैं। 3 दिन कबल कामारेड्डी में हुई मीटिंग के बाद KTR पूरी तरह से सेहतयाब नहीं हुए हैं। इस पस मंजर में कहा जा रहा कि वो करीमनगर में मुनक़िद होने वाली बड़ी आउटडोर मीटिंग में शिरकत नहीं कर पा रहे। डॉक्टरों की निगरानी में घर बैठे इलाज किया जा रहा। डॉक्टरों ने बताया कि वो 1 या 2 दिन में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। KTR ने कहा कि करीमनगर इजलास को कामयाब बनाने के लिए पार्टी की जानिब से तमाम इंतजाम किए गए। उन्होंने कहा कि करीमनगर पार्लियामेंट हदूद में तमाम असम्बली हलकों के पार्टी नुमाइंदों के साथ वक्तन फवक्तन राब्ता करके वो मालूमात हासिल कर रहे। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 43 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है। इससे कबल 8 मार्च को कांग्रेस पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी। ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने बताया कि दूसरी फहरिस्त में आसाम की 12, मध्य प्रदेश की 10, राजस्थान के 10, गुजरात के 7, उत्तराखंड की 3 और दमन और दीव की 1 निशस्त के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। इन उम्मीदवारों में मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ के बेटे निकुल नाथ चंदवाड़ा, राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालवर और आसाम के कालियाबोर से मौजूदा रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई अब जो रिहाट सेट से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्लिमानी हल्के वार पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त दर्ज झैल है। आसाम कोकराझार SU गिरिजन महेश्वरी धोबरी रकीबुल हसन दरंग ओदगिलगिरी दीप बयान गुवाहाटी मोहतरमा मीरा बर्ता कौर गोस्वामी देपू SU जेविराम इंग्लैंड करीमगंज हाफिज रशीद अहमद चौधरी सलचर सूर्यकांत सरकार नगाऊ बारदोलोई काजिर रंगा मोहतरमा रेशलंडा टर्की सोनीपुर और प्रेमलाल गंजू जोरहाट गौरव गोगोई मध्य प्रदेश भिंड SU फूल सिंह बराया टीमगढ़ SU पंकज अहरवार सतना सिद्धार्थ केशवा सिद्धि कमलेश्वर पटेल मंडला
SU ओमकार सिंह, मार्कम छिंदवाड़ा, निकुल नाथ बैतूल SU, रामू टेकुम राजस्थान, चोरू राहुल कोसवान, झुंझुनू बिजेंद्र ओला, अलवर ललित यादव भरतपुर SU, संजना जाटव टोनिक स्वाई, माधोपुर हरिश्चंद्रा मीना, जोधपुर करण सिंह अचिरदा, जालवर वेभू गहलोत, उदयपुर SU, ताराचंद्रा मीना, चिताड़गढ़ उदय लाल जाना शामिल हैं। हिंदुस्तान में इंसानी हुकूक के कारकुनों ने इन खदशात की बना पर इंडियन साख्ता ड्रोन्स गजा में हमलों में इस्तेमाल किए जाएंगे अपनी हुकूमत से इसराइल के साथ फौजी ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हैदराबाद में कायम अडानी एबलेट ने इसराइली फौज को गुज़िश्ता माह 20 हरमेस 900 ड्रोन फराहम किए थे। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े कारोबारी ग्रुप अडानी ग्रुप और इसराइल की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के दरमियान एक मुश्तरका मंसूबा है। जनूबी हिंदुस्तान में मौजूद ये जगह इसराइल से बाहर पहला ऐसा मुकाम है जहां हरमेस 900 तैयार किए जाते हैं। इस ड्रोन का गजा पर जारी इसराइली हमलों में फाल तौर पर इस्तेमाल होता रहा। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 31,000 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक 17 लाख अफराद बेघर हुए हैं। ह्यूमन राइट्स फोरम ने एक बयान में कहा है कि ह्यूमन राइट्स फोरम HRF इसराइल के साथ अडानी के हालिया मुआहदों की शदीद मजम्मत करता है, जिसमें गजा में फलस्तीनियों की जारी नस्लकुशी में मदद के लिए जदीद ड्रोन भेजना शामिल है। हम मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत इसराइल के साथ इस तरह के तमाम मुआहदे फौरी तौर पर मनसूख करे। हिंदुस्तान के इसराइल के साथ मजबूत दिफाई ताल्लुकात हैं और हिंदुस्तान इसराइली फौजी साजो सामान खरीदने वाले बड़े खरीदारों में से एक है। एक अंदाजे के मुताबिक उसने गुज़िश्ता दहाई में इसराइल से तकरीबन $2 अरब के हथियार खरीदे। HRF का कहना था कि फलस्तीन जंगी टेक्नोलॉजीज की तजुर्बागाह है और इसराइल आलमी सतह पर अपनी इस कामयाब नस्लकुशी की तशहीर कर रहा। HRF के बयान पर दस्तखत करने वाले VS कृष्णा ने अरब न्यूज से बात करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत सह्योनी इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों के साथ बिलखुसूस गजा में किए जाने वाले इक़दामात को यकसर मुस्तरद करे। जापान में एक खानगी कंपनी की तरफ से खला में भेजे जाने वाला रॉकेट टेक ऑफ के बाद फट गया। रॉकेट लॉन्च होने के फौरन बाद फट गया। अवामी नशरियाती इदारे NHK ने अपने रॉकेट धमाके की वीडियो जारी की। इस वीडियो में रॉकेट से आग के शोले और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा। टोक्यो में कायम स्टार्टअप स्पेस वन का मकसद पहली निजी जापानी कंपनी बनना है जिसने कामयाबी के साथ सैटेलाइट को मदार में रखा, लेकिन इसका मिशन नाकाम रहा। ये रॉकेट जापान के मगरबी इलाके से लॉन्च किया गया। इस रॉकेट के लॉन्चिंग के फौरन बाद फटने से जापानी निजी कंपनी की कोशिशों को भी धक्का लगा है। 18 मीटर 60 फीट ठोस ईंधन वाला केरोस रॉकेट एक छोटा सरकारी टेस्ट सैटेलाइट लेकर मगरबी जापान के वाकायामा पर फ्रैक्चर में स्टार्टअप के लॉन्च पैड से उठा, लेकिन लॉन्चिंग के चंद सेकंड बाद ही रॉकेट में आग के शोले उठने लगे, जिसकी वजह से लॉन्च पैड का इलाका स्याह धुएं में तब्दील हो गया। जैसे ही पानी का छिड़का हुआ जलता हुआ मलबा आसपास की पहाड़ी ढलवानों पर गिरने लगा। स्पेस वन ने एक बयान में कहा, पहले के रोस रॉकेट की लॉन्चिंग पर अमल दरामद किया गया, लेकिन हमने परवाज को रोकने के लिए एक इकदाम उठाया। स्पेस वन ने एक बयान में मजीद कहा कि तफसीलात की छानबीन की जा रही। रॉकेट के उड़ान भरने के चंद मिनट बाद होने वाले धमाके ने एक जापानी निजी कंपनी के सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में दाखिल होने की कोशिशों को भी धक्का पहुंचाया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం.
కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.